Hello everyone. So now the next topic in chapter number 3 is valency of an element. Okay, every element has definite capacity to combine with other elements. मीन जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है ना. मीन्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है और हर एलिमेंट की ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दिस इज डिफरेंट. Okay, so what is valency? Valency of an element is defined as the combining capacity of the element. So that combining capacity of the element is known as its valency. Means जो एक element है वो further कितने elements के साथ combine हो सकता है, right? So that is the valency, right? Atoms, ions, every element has their own valency. We know about cations. We had read this in ions topic. Cations are those which have positive charge, positive valences, and anions are those which have negative valences, right? So now here are the positive ions, means cations. Okay, so some ions are like that which have one positive charge, some have two positive charge, others have three positive charge, and some of them have four positive charge. So according to the charge that the elements have, they are classified as monovalent, bivalent, trivalent and tetravalent. Okay, so this classification is done by depending upon the charge that is present on them. Okay, like hydrogen, it has one positive charge. Okay, this is hydrogen ion, sodium ion, copper ion, right? Gold ion. Okay, so these have one positive charge on them. Okay, bivalent means those which have two positive charge on them. Mg2 positive, Fe2 positive, Ca2 positive, cobalt 2 positive. Trivalent are those which have three positive charge on them, and tetravalent are those which have valency equals to 4, means they have 4 positive charge. So this is the valencies of the positive ions. Now the next is valencies of negative ions. Negative ions are also monovalent, bivalent, trivalent and tetravalent. Okay, Cl 1 negative, OH hydroxide 1 negative. Okay, Cl has 1 negative charge. This is chloride ion. This is hydroxide ion. This is Cn negative, cyanide ion. Okay, now here are the elements which have 2 negative charge, and these have 3 negative charge, these have 4 negative charge. This is sulfide, okay, oxide, sulfate, N3 negative, this is nitride, okay, P3 negative, this is phosphide, BO3 3 negative, this is borate ion, and C4 negative, this is carbide. So these are the valencies of the negative ions. There are some elements which shows more than one valency, means जिनके पास एक से ज़्यादा valency है. जैसे कॉपर है, कॉपर it shows one positive charge also and it shows two positive charge also. Okay, so if it has one positive charge, then it is written in Roman numbers. Okay, 2 positive is written like this in Roman numbers, and 3, if any element has 3 positive, like here we have Fe3 positive, then it can be written as Fe and then Roman number in bracket for 3, right? So there are some elements which has variable valency, means more than one valencies, like copper and copper positive. Okay, and these valencies जो positive charge वाली valencies है, हम उनको Roman numbers में भी लिख सकते हैं by writing that Roman number in the bracket. Okay, so this Roman number जो हम valency के लिए यूज करते हैं, that is just for positive ions. Okay, not for negative. Now the next topic is formulae of ionic compounds. अभी जो ionic compounds है, ionic compounds are those which contains ions. Ions means which have cations and anions, जिनके पास positive charge और negative charge वाले ions हो. So that forms the ionic compounds. Okay. So while writing the formula of chemical compound, positive and negative valencies of the ions in the compound will add up to 0.
ठीक है ना, मीन्स जो वहाँ पे फॉर्मूले में जो उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है आयंस के ऊपर, अगर हम उसको ऐड करेंगे देन दैट शुड add up to 0 because we know that compounds are electrically neutral. ठीक है ना, so electrically neutral means their valencies, positive negative valencies जो आयंस की, that should add up to 0. Only then the atom or the compound जो है हमारे पास it will become neutral. Okay, now what is the method to write the formula of the compound? That method is criss-cross method. Okay, so first step in this we have to write the symbol of cation and the symbol of anion along with its charge. ठीक है, अगर हमें बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड का जो आयनिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो हमें लिख के बताओ. ठीक है, सो व्हाट फर्स्टली विल डू, कैल्शियम एंड क्लोराइड. वी नो कैल्शियम cation Ca, chloride is Cl, and now we had read about the valencies of the cations and anions, हमने अभी पढ़ी, and the charge on the calcium is 2 positive and on the chlorine it is 1 negative, so this becomes chloride ion and this is calcium 2 positive. ठीक है ना, जब हमने कंपाउंड का नेम लिखना है, जब हम उनके सिंबल लिखेंगे, फर्स्टली वील राइट कैटायन, पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाला लिखेंगे फिर नेगेटिव चार्ज वाला लिखेंगे. ठीक है ना, अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड का बोला है तो हम पहले कैटायन लिखेंगे फिर एनायन अलोंग विद देयर चार्ज. जैसे यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन है, राइट. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, विल राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम और आयन. ओके, बिफोर इट्स वैलेंसी देन वी विल क्रिस क्रॉस द वैलेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंसी लिखेंगे ईच एटम और आयन की बिलो इट्स सिंबल. अभी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का था, हमने देखा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl 1 नेगेटिव है, तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया सिंबल Ca और Cl. ठीक है ना, हमने ये कहा ना कि वैलेंसी लिखेंगे हम एटम या आयन की बिलो इट्स सिंबल, मीन्स पहले हम सिंबल लिखेंगे फिर सिंबल्स के नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे. कैल्शियम हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो हम कैल्शियम के नीचे 2 लिख देंगे. क्लोराइड हियर हैज नेगेटिव 1 नेगेटिव, सो वी विल राइट 1. साइन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं लिखेंगे, सिंपल एलिमेंट्स लिखेंगे और मीन्स आयंस लिखेंगे और फिर नीचे उनका हम वैलेंसी लिखेंगे. देन वी विल क्रिस क्रॉस दिस वैलेंसीज, मीन्स यहाँ पे जो कैटायन के नीचे वाली वैलेंसी है इसको हम एनायन के साथ पहुंचा देंगे और एनायन के नीचे जो वैलेंसी है वी विल क्रॉस इट ओवर टू कैटायन. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम फिर कैटायन ही लिखेंगे फिर एनायन लिखेंगे, पहले कैल्शियम लिखेंगे फिर क्लोरीन लिखेंगे. ठीक है, तो अभी क्लोरीन कैल्शियम है, किसके साथ हमने क्रॉस ओवर किया, 1 के साथ. तो जो हम ये नंबर है यहाँ पर हम कहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट दीज नंबर इन देयर सबस्क्रिप्ट, मीन्स हम उनके ऊपर नहीं लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, उनके नीचे लिखेंगे हम. ठीक है, तो कैल्शियम 1 के साथ क्रॉस ओवर हुआ तो कैल्शियम के पास आएगा 1, क्लोरीन 2 के साथ क्रॉस ओवर हुआ तो हम क्लोरीन और उसके नीचे क्या कौन सा नंबर सब्सक्राइब करेंगे, 2, Ca1 Cl2. ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स के जब हम फॉर्मूले लिखते हैं इनमें एक और रूल है कि अगर कहीं पे भी 1 आता है तो हम उस 1 को नहीं लिखते, उस 1 को हम फॉर्मूला में यूज नहीं करते. तो मीन्स हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, CaCl2. यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स हमें ऐसे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, CaCl2. ओके, एंड 1 इज नॉट रिटन इन द सबस्क्रिप्ट वाइल राइटिंग द फॉर्मूला. So this is the criss-cross method to write the formulas of the ionic compound. Okay, ये तो था अगर सिंपल हो. Now next is there some points that if a compound contains polyatomic ions, अगर किसी भी कंपाउंड के पास polyatomic ions हो, polyatomic ions means जिनके पास 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, the formula of that ion is enclosed within the brackets बिफोर क्रिस क्रॉसिंग, मीन्स वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करने से पहले हम उस पोलिएटोमिक आयन का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे, इन ब्रैकेट. ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिखा फिर सल्फेट, एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव. बच्चे टू राइट दीज फॉर्मूलाज आप लोगों को जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वैलेंसीज है कि किसके पास कौन सी वैलेंसी है वो आप लोगों को लर्न होना चाहिए अच्छे से. ठीक है, देखो एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव. ठीक है,
तो हमने यहाँ पे लिखा Al, यहाँ पर लिखा SO4। अभी SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है ना, मीन्स इसके पास 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 5 नंबर ऑफ एटम्स है इसके पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट इन ब्रैकेट, हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इन्होंने कहा कि क्रिस क्रॉस करने से पहले उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर Al के नीचे हमने लिख दिया वैलेंसी 3, SO4 के नीचे वैलेंसी लिख दी 2। चार्ज नहीं लिखेंगे अब हम, प्लस माइनस वाला साइन नहीं डालेंगे अब, ठीक है। Al क्रॉस ओवर किया 2 के साथ और SO4 3 के साथ। तो अभी ये जो नंबर क्रॉस ओवर किए ये कहाँ पे आएंगे, इनके सबस्क्रिप्ट में आएंगे, ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखेंगे, इनके नीचे लिखेंगे। सो Al2 SO4 को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, और फिर इसके नीचे 3, ठीक है ना। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस थे 4 और 1 सल्फर, 5 नंबर ऑफ एटम्स हो गए, इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल के फिर उसकी वैलेंसी को क्रॉस ओवर किया। नाउ डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय कॉमन फैक्टर इफ एनी टू गेट द सिंपल रेशियो। अभी यहाँ पे अगर हमें दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट, Mg2 पॉजिटिव होता है और SO4 पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मीन्स उस पर भी 2 पॉजिटिव है, उस पर 2 नेगेटिव है, चार्ज 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों पर जो, अगर हम साइन को छोड़ दें तो जो नंबर है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर 2 आ गया यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 1 नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इनकी वैलेंसीज को क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, ओके। देखो ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 1 1 आ गया दोनों पे चार्ज, तो फिर 1 1 लिख दिया, क्रॉस ओवर कर दिया। तो Mg के सबस्क्रिप्ट में भी 1 है और SO4 के भी सबस्क्रिप्ट में 1 है, और हम 1 को एज सबस्क्रिप्ट फिर फॉर्मूला में शो नहीं करते। सो वी विल गेट द फॉर्मूला MgSO4, ओके। नेक्स्ट इज टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द मोलिकुलर कंपाउंड्स। मोलिकुलर कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। फर्स्टली वी विल राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फिर उनकी वैलेंसीज लिखेंगे और फिर उनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एनी कंपाउंड्स का फॉर्मूला किया, अगर मोलिकुलर कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने को आता है, सो फॉर दैट ऑल्सो फर्स्टली वी विल राइट द सिंबल देन देयर वैलेंसीज। हेयर इज फॉर अमोनिया, अमोनिया वी नो NH3, ठीक है ना। तो एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन इट इज़ 1, एंड देन क्रॉस ओवर देयर वैलेंसीज विल गेट N विल क्रॉस ओवर विद 1, मीन्स तो यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं है फिर, ठीक है, H3। सो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन हैज़ 1 चार्ज, सल्फर हैज़ 2 चार्ज, सल्फाइड आयन बना यहाँ पे, और एंड H will cross over with 2 and S will cross over with 1. So we will get H2S. Okay. Now next question we have is the ratio of the masses of the carbon and oxygen is 3:8. Means carbon और oxygen ये दो एलिमेंट है, इनकी हमें रेशियो दे रखी है ऑफ masses, मीन्स इनकी रेशियो बाय मास 3:8, राइट। एंड देयर एटॉमिक मासेस, और उनके एटॉमिक मासेस कितने हैं, 12 एंड 16। कार्बन एंड ऑक्सीजन 12 एंड 16 है उनका एटॉमिक मास, ओके। हियर वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल में हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ देयर एटम्स, मीन्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है ना। हमने ये रेशियो फाइंड करनी है ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, के CO2 में कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, ओके। हमें एलिमेंट्स पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये हमें दे रखा है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास इज 3:8, एटॉमिक मास इज गिवन 12 एंड 16, okay. After that what we will do, we will divide this mass by the atomic mass। जो हमें मास रेशियो दे रखी है तो 1 by 1 जो हमें पहले कार्बन की मास रेशियो दे रखी है उसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, फिर जो ऑक्सीजन की मास रेशियो दे रखी है उसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, इनको डिवाइड किया 0.25, 8 डिवाइडेड बाई 16 वी गेट 0.50, राइट। और अभी इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 0.25 स्मॉल है या 0.50, हमें पता है 0.25 स्मॉल है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को, ठीक है ना, जो इन दोनों में से अगर हमारे पास यहाँ पे बच्चे 3 एलिमेंट्स दे रखे होते हैं ना, तो फिर हम उन तीनों में से देखते कि उन तीनों में से सबसे स्मॉल नंबर कौन है। जो नंबर तीनों में से सबसे छोटा होता फिर हम सभी को उसी के साथ डिवाइड कर देते, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 है,
तो इनमें से छोटा है 0.25, तो हम 0.25 को भी 0.25 से डिवाइड करेंगे और 0.50 को भी 0.25 से डिवाइड करेंगे। मीन्स यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास रेशियो को एटॉमिक मास से, तो जो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आते हैं उन नंबर्स में से जो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, फिर उन सभी को हम उसी के साथ टर्न बाय टर्न डिवाइड कर देते हैं। 0.25 को 0.25 से डिवाइड किया 1, 0.50 को 0.25 से डिवाइड किया 2 आ गया। मीन्स ये हमारी रेशियो है ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज 1 एंड ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2। सो रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2 में कितनी रेशियो आई? 1:2। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 1 एंड ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2, बट हम 1 को सब्स्टिट्यूट में नहीं लिखते, सो आवर फॉर्मूला बिकम्स CO2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। हमें इन्होंने यहाँ पे कंपाउंड्स के फॉर्मूले पूछे हैं। फर्स्ट Ag पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स लिख लिए Ag और S। Ag पर चार्ज है 1 पॉजिटिव तो 1 लिखा, S पे चार्ज है 2 नेगेटिव तो 2 लिखा, एंड देन उनको क्रॉस ओवर कर दिया Ag2 S1 और 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Ag2S। एंड Ag इज सिंबल ऑफ सिल्वर। Ag किसका सिंबल है? सिल्वर का, ठीक है। दिस इज सिल्वर एंड S2 नेगेटिव इज गिवन ओवर हियर इज सल्फाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सिल्वर सल्फाइड, राइट। नाउ नेक्स्ट सिमिलरली Cr3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। Cr के नीचे उसकी वैलेंसी, O के नीचे उसकी वैलेंसी, फिर वैलेंसीज को क्रॉस ओवर और हमारे पास बन गया Cr2O3, राइट। सो दिस इज द वे टू राइट द फॉर्मूलाज एंड दिस इज द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल इन Na2O। अभी पहले में वैलेंसीज दे रखी थी ना लास्ट क्वेश्चन में, और हमने कंपाउंड का जो फॉर्मूला था, जो मॉलिक्यूल का, वो फाइंड किया था, ठीक है। पर यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, कंपाउंड का, और हमें उन्होंने वैलेंसी पूछी है। अभी फॉर्मूला क्या है? Na2O। अगर Na के सब्सक्रिप्ट में 2 है, इट मीन्स कि वो वैलेंसी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। O के सब्सक्रिप्ट में क्या है? 1, मीन्स वो वैलेंसी किसकी होगी? सोडियम की, Na की। तभी अगर हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2 और ऑक्सीजन 1 रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास मेटल कौन सा है? सोडियम। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दे आर मेटल्स, ओके। सो फिर वैलेंसी इन्होंने पूछी है मेटल की, सोडियम हमारे पास मेटल है, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द मेटल? द वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल इन Na2O इज 1। और यहाँ पे हमारे पास मेटल कौन सा है? सोडियम, मीन्स Na। Okay, in this way we will write the valency of the metal. Now in the next is the mass percentage composition of the element in a compound. पूरे कंपाउंड में हमें किसी एक एलिमेंट की मास परसेंटेज पूछी होगी, तो हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। देखो जैसे क्लास में होता है कि क्लास में अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हमारी क्लास में 32 हैं, ठीक है ना, और उनमें से अगर कोई एक स्टूडेंट है रमन, ठीक है ना, तो किसी टीचर ने पूछा कि सारी पूरी क्लास में से रमन के कितने परसेंट आए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे रमन की परसेंटेज? तो जितने मार्क्स ऑब्टेन किए रमन ने, ठीक है ना, तो जितने मार्क्स ऑब्टेन किए रमन ने, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन, उसको हम टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड कर देंगे। टोटल मार्क्स तो पूरी क्लास के लिए सेम है, ठीक है ना। तो जितने मार्क्स रमन ने ऑब्टेन किए उसको हम टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दैट विद 100। मीन्स 32 की क्लास में से हम अगर एक बच्चे के बारे में पूछा तो हम उसी के ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ऐसे ही यहाँ पर है, उन्होंने हमें पूछा दैट कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। इस पूरे कंपाउंड में से हमें सिर्फ किसकी मास परसेंटेज पूछी है? कॉपर की, सिर्फ कॉपर की पूछी है। सल्फेट की किसी यहाँ पे सल्फेट की नहीं पूछी, सिर्फ कॉपर की पूछी है, ना ही सल्फर की पूछी ना ही ऑक्सीजन की पूछी। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर की परसेंटेज बताओ कॉपर सल्फेट में कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, जितना कॉपर का मास होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मीन्स टोटल मास।
पूरे के पूरे कॉपर सल्फेट का जितना मास है उसको हम नीचे लिखेंगे। कॉपर के मास को ऊपर लिखेंगे, पूरे कॉपर सल्फेट का जो मास है उसको नीचे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। ठीक है, आपको एटॉमिक मास कॉपर का, सल्फर का, ऑक्सीजन का क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 64 EMU। और मास ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे, हमने पीछे फाइंड किया था ना कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो तो हम फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करते हैं, और अगर हमारे पास मोलिकुलर कंपाउंड हो तो हम मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड क्या आएगा, कॉपर कितने नंबर ऑफ कॉपर है 1, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, प्लस सल्फर भी 1 है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस ऑक्सीजन 4 है, सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर का मास दे रखा है 64, सल्फर का दे रखा है 32 और ऑक्सीजन का दे रखा है 16। तो हम इनको सोल्व करेंगे तब हमारे पास जो टोटल मास आएगा, दैट टोटल मास कम्स आउट टू बी 160 EMU। ठीक है, तो अभी हमें मास परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, कॉपर की। कॉपर का हमें एटॉमिक मास दे रखा है 64। ठीक है, तो क्या आएगा, मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 64। कॉपर का ही मास लिखेंगे, नीचे पूरे कंपाउंड का मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कॉपर की मास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे आपको कहा हो कि मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर की फाइंड करो, तो वो कैसे करेंगे, मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ सल्फर, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जितना भी हमारे पास मास है टोटल कंपाउंड का वो, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ टोटल मास। यहाँ पे सल्फर का देखो एटॉमिक मास कितना दे रखा है 32, और हमारे पास टोटल कितना आया था यहाँ पे 160, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू है। ओके, सो फॉर्मूला क्या बना मास परसेंटेज कंपोजिशन का, मास ऑफ एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास जो होगा वो लिखेंगे, नीचे टोटल मास लिखेंगे कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और जो एलिमेंट का मास है उसको हम स्मॉल w के साथ डिनोट करते हैं, कंपाउंड के मास को कैपिटल W के साथ इंटू 100। सो दिस इज द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, सो दिस इज इट्स फॉर्मूला। ओके।